ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہزاروں اور کئی بہت سی تعداد میں جن کے شاگرد بھی ابھی بہت سارے مجھے میسج آ رہے ہیں پاکستان بھر میں علماء حضرت سے صاحب فیض کر کے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں حضرت علامہ مفتی احمد سعیدی صاحب، میں آپ کو بار دیگر سلام محبت پیش کرتا ہوں. حضرت کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی بہت مصروفیات سے وقت نکال کے آج افکار آن لائن میں ہمیں جوائن کیا ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ اللہ کریم اہل سنت پہ سلامت رکھے. حضرت میں آپ کی جانب حاضر ہو رہا ہوں، فرمائیے گا کہ بدر جو ہے، مارکہ بدر جو ہے، اس کی بنیاد بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی ایسا مارکہ ہوا اور اچانک کفار نے حملہ کر دیا اور مسلمان جو تھے وہ تعداد میں بھی کم تھے، ان کے پاس سامان حرب بھی نہ تھا، گھوڑوں کی تعداد بڑی کم تھی، اونٹ بڑے کم تھے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ مسلمان اس وقت بظاہر کمزور دکھائی دے رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بدر کا مارکہ ہے، اس کے پیچھے اصل اسباب کیا تھے؟ کس وجہ سے یہ مارکہ ہوا اور کس چیز نے دونوں طرفین میں جو حضرات تھے ان کو، کس چیز نے حق و باطل کے درمیان جو کیا ایسی چیز تھی جس نے مجبور کیا کہ یہ مارکہ بدر کے مقام پہ جو ہے قیام پذیر ہوا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام میں جتنے بھی رفقائے کار ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ علماء اور بڑے بڑے اسکالروں سے آپ عوام کو استفادہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سعی جمیلہ قبول فرمائے. آمین بدر آمین. جیسا کہ چودھری صاحب نے فرمایا کہ اسلام کا یہ پہلا مارکہ ہے. سن 2 ہجری میں اس کا وقوع ہوا. بدر ایک مقام ہے، وہاں ایک بدر نامی شخص کی وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے. جی بالکل، جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے وہ مقام بڑا مشہور تھا اور اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا. اس میں 3 جو ہے وہ اقوال ہیں جی کہ بھی اس بدر نامی اشخاص جو 3 ہیں جی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں ایک بدر نامی آدمی رہتا تھا جس نے وہاں کنواں کھودا ہوا تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، اچھا تھا، اس جی وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور یہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان فرمایا ہے جی کہ بالکل، حق و باطل میں فرق فرق کرنے والا، بے شک، سبحان اللہ. اور جب دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے یوم التقى الجمعان، کفار اور مسلمان کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، 2 جماعتوں، 2 گروہوں کو آمنے سامنے والے دن سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ابو سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر وہ جا جی رہا ہے، اور اگر ہم اس قافلے کا پیچھا کریں تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوگا اور آئندہ جہاد کی تیاری میں ہمیں یہ ممد اور معاون ہوگا. اور جی حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے جہاد قائم رکھا تو حاکم رہے، سبحان اللہ، جب بے شک، جہاد سے منہ موڑا تو پھر محکوم بن کے رہے. جہاد اسلام کی روح ہے، بے شک، اور بے جہاد جو شک. ہے یہ تلوار قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، اور قرآن تلوار کو صحیح معنی چلنے کا کنٹرول کرتا ہے کہ بے تمہیں شک. کہاں چلنا ہے، کہاں نہیں چلنا. تو باوجود اس کے کہ اس میں سر و سامان نہیں تھا، میں ایسا آپ ہی ہے.
की तवज्जो इस तरफ करूंगा जी कि 313 हजरात जो अहले सियर कुतुब जमहूर मुफस्सिरीन ने लिखा है, जी जिसमें 77 जो है वो मुहाजिरीन में से थे, बाकी सब अंसार में से, बाकी अंसार थे, ठीक है, अंसार। बिल्कुल ऐसे ही। और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो मईयत में थे वो 305 थे। ठीक है 8 हजरात वो हैं जो जंगे बदर में शामिल नहीं हुए, मगर जी हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको माले गनीमत का हिस्सा भी अता फरमाया जी और उनको अहले बदर में शामिल फरमाया। सुभान अल्लाह। उन 8 में से 3 मुहाजिरीन में से हैं, जिनमें से जी पहले नंबर पर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और हज़रत तलहा सुभान है, अल्लाह। और 5 हजरात जो हैं वो अंसार में से हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है अब जी। उन जो वहां नहीं थे उस जी वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम जब तैयारी कर रहे थे तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि हुजूर पहला मार्का है, तो जी मैं भी अपनी ताकत के जौहर दिखाऊं, मुझे भी इजाजत दी जाए जंग पे। आपने फरमाया बेशक उस्मान, मेरी बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बीमार है, आप उसकी तीमारदारी में यहीं रहें। और हुजूर मैं अहले बदर में शामिल न हूं, फरमाया अंत मिन अहलिल बद्र, हाँ 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 हाँ, अल्लाह कि अकबर, तू अल्लाह अहले अकबर। बदर से हो गया, वाह वाह घर वाह वाह, बैठे। सुभान अल्लाह, यानी सुभान आप अल्लाह। अंदाजा लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान के उस घर को बदर की हैसियत अता फरमा दी। वाह वाह, ये मुफ्ती साहब एक तरह से मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि ये है इख्तियारात मुस्तफ़ा, इख्तियारात जी मुस्तफ़ा जी, को मैं देखिए, उसी ये तरफ इख्तियार थोड़ा मुस्तफ़ा इशारा है। कर रहा हूं। सुभान बिल्कुल अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह, आपकी जो है वो सुभान अल्लाह। सही है, इंदिया आपका सही है। तो आपने फरमाया कि मेरी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तीमारदारी, इनकी तबाकुर्सी, इनकी खिदमत के लिए आप कर रहे हैं। अब जो नबी हजरत उस्मान के घर को बदर का मकाम उसकी हैसियत अता फरमा सकता है, वाह वाह, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दिल को वो मदीने की एक गली का मकाम अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। और आपने फरमाया कि तू अहले बदर है। अब आप इसमें गौर फरमाएं कि हजरत उस्मान नबी पाक की बेटी की खिदमत के लिए खड़े हैं। क्या तो बात है, आप जरा तसव्वुर करें कि आले रसूल, औलादे रसूल की खिदमत क्या क्या बात है, क्या क्या इनाम क्या नहीं ले देती क्या क्या बात है, सुभान है। अल्लाह। हुजूर की औलाद की खिदमत जब बदर का सवाब अता फरमा देती है, वाह तो वाह वाह, हजरत उस्मान उनमें से हैं जो वहां शरीक नहीं थे, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अहले बदर फरमाया। वो 8 आदमी थे जिनको सुभान हुजूर अल्लाह, अलैहिस्सलाम ने बदर में शामिल फरमाया। ये तो सुभान आप अल्लाह। इसकी वो बाकी हजरत वहां हजरत मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो आपने अबू सुफियान के काफिले की बात की, और मैं ये चाह रहा था कि इसकी वजूहात जो असल वजह बनी उस पे आप जी जी थोड़ी सी मजीद रोशनी डालिए, ताकि वो पता चले कि ये मार्का हुआ क्यों जी था। तो सरकार ये इसमें असल में ये कोई तैयारी नहीं थी, इस जंग के लिए तैयारी नहीं की गई बाकायदा तौर पर। जी न सहाबा कराम तैयार थे, जी ये मकसद था कि उस काफिले की वो की जाए, काफिले का पीछा किया जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके सामान मुसलमानों के लिए आइंदा बहुत मदद देंगे। तो चुनाचे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अपने सहाबा को बतौर जासूस फरमाया, जाओ जी रास्ता देख कर आओ। ये वहां बदर के मकाम पर पहुंचे, इन्होंने जी जायजा लिया कि ये रास्ता है, शाम से आता है और अबू सुफियान यहां से गुजरकर मक्का में जाएगा। हमने कहां पड़ाव करना है, कैसे इसका पीछा करना है, कैसे काफिला कवर करना है। जब अबू सुफियान वहां आया तो उसको ये बहुत बड़ा चालाक था,
इसने महसूस किया और लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई मदीने के आदमी आए थे? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस तो आपने नहीं देखे? उन्हें कहा जासूस का तो हमें पता नहीं है, अलबत्ता यहाँ 2 आदमी वहां बैठे रहे, ऊंट भी थे। ये जाकर उस ऊंट की मेंगनी को इसने तोड़ा और उससे खजूर की गुठली के कुछ कचरे नजर आए, तो इसने कहा यकीनन ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने के ऊंट हैं। तो इसने फौरन पहले तो रास्ता बदला, ये उस वादी से निचला रास्ता लेकर ये मक्के रवाना हो गया और फौरन इसने आदमी भेजा अबू जहल के पास के जल्दी करो, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा हमारे काफिले को लूटने वाले हैं, अपने काफिले को बचाओ। चुनाचे अबू जहल ने वहां काबे में आकर ऐलान किया कि हर 2 आदमी में से एक आदमी जरूर चाहिए। ये बड़ा लश्कर लेकर, जिनके पास साजो सामान 700 ऊंट थे, आप अंदाजा लगाएं, 1000 के करीब ये अफराद पर मुश्तमल था और इनके साथ लहव लाभ का सामान था, लोडियां थी। इन्हें कहा हम जाएंगे वहां और वहां जश्न करेंगे, मुसलमानों को बताएंगे कि हम क्या है। इधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी कि वो जंग करने के लिए तैयार है। तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा से मशवरा किया कि अल्लाह ने तुम्हें इन 2 में से एक का वादा किया है, या वो काफिला या फतह। काफिला तो अब निकल गया, अब वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें तुम्हारी राय क्या है? तो अक्सर सहाबा ने अर्ज की कि हुजूर आपने तो पहले बताया नहीं, हम तैयारी करते, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार होते। अब उस काफिले का पीछा करना चाहिए, इस मार्के से, जंग से बचने की राय दी। मगर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की ये राय नहीं थी। आप चाहते थे, अल्लाह की तरफ से वादा हो चुका था, आप उसका लश्कर का सामना करना चाहते थे। जब हुजूर के चेहरे पर थोड़े से गुस्से के अलामात पाए गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। फिदा का अबी कौमी या रसूल अल्लाह, हुजूर हम वो नहीं है जिन्होंने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, वो बनी इसराइल वाले नहीं है हम। उन्हें कहा मूसा तू जा, तेरा रब जाकर लड़े, हम नहीं लड़ सकते, हमें हुक्म फरमाए, हमने आपका कलमा पढ़ा है, आप पर एतमाद है। हजरत साद बिन मुआज ने तो इतना फरमाया, हुजूर अगर आप हुक्म फरमा दे तो हम समंदर में छलांगे लगा देंगे। हजरत बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर आप चाहे तो हमें अदम तक ले जाएं, हम वो नहीं है पीठ फेरने वाले, हम आप कलमा पढ़ चुके हैं, हम आखिरी खून तक आप पर कुर्बान होंगे। तो उस वक्त क्या बात है, ये तय हुआ कि अब हमने काफिले का सामना करना है। सामना तो इस मुकाबला वजह से सरकार के सहाबा जब आए, उधर कुफार भी पहले पहुंच चुके थे। सहाबा के पास क्या सामान था? इनके पास सिर्फ 3 घोड़े थे, 3 घोड़े थे ऐसे, और 6 जिरह थी जी, 8 तलवारें थी, 70 ऊंट थे, और एक एक ऊंट पर 3-3 आदमी बारी बारी सवार होकर जा रहे थे। और जिस ऊंट पर मेरे आका दो आलम थे, उन आपके साथ हजरत हरसा और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अर्ज की हुजूर जब उनकी बारी आती सवारी होने की, तो अर्ज करते हुजूर आप सवार ऊंट पे बैठ जाए, हम आपकी रिकाब की सादत हासिल करते करते आपके साथ चलेंगे। आपने फरमाया तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, और तुम अल्लाह की बारगाह में अजर लेना चाहते हो, तो मैं भी उससे बेपरवाह नहीं हूँ। बारी बारी सबको आप वहां चले, और 70 ऊंट थे सिर्फ, और उधर से 700 ऊंट। आप देखें कि रब का जो वो था सरदार, उसके जिम्मे था एक एक दिन का खाना, 10 या 11 ऊंट रोजाना जिबा करके उधर मेहमानी दी जाती थी जी। इतना उनका
वो था, इनके पास कोई सामान नहीं था, तो वो न लश्कर पर न भाले पर भरोसा था, तो एक सादी सी कमली वाले पर। वहां क्या बात तीर है, तफंग पे भरोसा नहीं था। क्या बात और है, क्या बात है, क्या बात अपना जलंधरी साहब ने तो खूब फरमाया कि ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर काली कमली वाला था। तो है। वाह हुजूर वाह की वाह, मईयत में जब वहां पहुंचे, उधर इतना सामान, इधर इतना बेसुरो सामानी, महज वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खुदा का वादा था जो पूरा हुआ। अल्लाह ने इस्लाम की शान और शौकत रखी, और जो उनके बड़े बड़े क्या मुतकब्बिर थे बात है, उनका सर खाक आलूदा कर दिया, और उन्हें जलील ख्वार खाकुल, करके खत्म कर दिया। और इतना कि अबू जहल को दो बच्चों ने आकर मारा, हजरत अफरा के बेटे हजरत मुआज और हजरत मुअव्वज, ये दोनों वहां गए और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा कि चचा अबू जहल कहाँ है। अबू जहल कहाँ है, आय हाय, आपने फरमाया तुम्हारा क्या काम है। तो यहाँ भी हबी जलील ने कहा कि कसम खाई है कि मर जाएंगे या मारेंगे इस आहा, नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को, हम कसम अल्लाह, खा के आए हैं। हाय हाय, आपने इशारा फरमाया, वो देखो हाय हाय, सियाह हाय तरीन हाय, एक अजीब घोड़े पर बाहर दस्ता फौज का पहरा दे रहा है, वो अबू जहल है। फरमाते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुझे पता नहीं कि मेरा इशारा पहले गया या ये बच्चे वहां पहले पहुंचे। तो अबू जहल नीचे था। हजरत मुआज का यहाँ से बाजू कट गया और लटक गया, उसके बावजूद भी आप लड़ते रहे। और हजरत मुअव्वज तो उसी बदर में शहीद, गजवा में शहीद हो गए, जिसमें 14 सहाबा शहादत पाई गजवा बदर में। और हजरत मुआज जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो उनका बाजू लटक रहा था, तो मेरे आका ने लुआब दहम लगाकर उस बाजू को वहीं चिबाड़ दिया, चमटा दिया, और वहीं उसको आहा, फिट कर दिया, और बिल्कुल सेहतमंद हो गए, और वो आहा, जिंदा रहे। हजरत उस्मान गनी के दौर तक वो जिंदा रहे, हजरत मुआज। तो जब अबू जहल को इन्होंने गिराया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहां पहुंचे, देखा तो जी, उसकी आखिरी थोड़ी सी रमक बाकी थी। आपने उसकी दाढ़ी को पकड़ के फरमाया, खुदा रसूल के दुश्मन, बता तेरा गरूर कहाँ है। मगर आहा, उसने पता है जवाब क्या दिया, उसने कहा कि ठीक है, काश के मुझे कोई बहादुर आदमी मारता, मुझे एक देहाती ज़राअत पेशा जाट लोगों के बच्चों ने मारा है। यानी अल्लाह मरते अल्लाह, वक्त उसकी उसका तकब्बुर, उसका अल्लाह गुरूर अल्लाह, खत्म न अल्लाह हुआ। इसीलिए अल्लाह उलमा अकबर, फरमाते हैं उस फिरौन से ये फिरौन सख्त है, तो वो मरते वक्त डूबते वक्त उसने कहा था अल आन आमन तो रब्बे मूसा व हारून, कि मैं रब्बे मूसा को मानता हूं। उसने आखिरी दम तक मान तो लिया, मगर इसने तो आखिरी दम तक तस्लीम ही न किया। ये उससे आहा, बदतर हजरत यहाँ यहाँ एक सवाल है आपके लिए। काफी देर से हमारे एक भाई ने मैसेज किया था, जी उन्होंने दोनों शहजादों ने जिन्होंने कत्ल किया था अबू जहल को, उनकी उम्र पूछी है एक भाई ने अभी। उनका नाम जैनुल आबिदीन साहब, शायद आपके शागिर्दों में इनका शुमार है। ये इस भाई ने सवाल किया था कि इन दोनों की, हजरत माज और माबस की उम्र कितनी थी। मेरे ख्याल में 10-12 साल से कम ही थी, ज्यादा उम्र इतना नहीं थी, जहां मेरा जी ठीक, अंदाजा है। तो ठीक हो गया, वो इतने ठीक वो है। नहीं थे। इसमें इसमें ऐसी कोई मतलब परफेक्ट चलो वाली जो कोई बात बात नहीं, इसमें, बच्चे हैं। ठीक है। वो इस्लाम के वकार को जब जब अल्लाह ताला काम लेना चाहता है तो अबाबिल से भी ले लेता है। बेशक, हाथी ऐसा मरा ही है, सकता सुभान है अल्लाह, अबाबिलों से, तो बच्चों से एक बेशक ऐसा ही फिरौन वक्त को नहीं मरा सकता। ये है। अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा था। दोनों करिश्मा ने था, सरकार की बारगाह में आके इल्तमास की, लेकिन सरकार ने फरमाया अबू जहल का सामान माज को दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला वाह, इब्न सुराते हैं कि जब मैं उसका सर काट के लाया हुजूर की बारगाह में, तो जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसको हजरत शेख मुहक्किक ने भी लिखा कि सरकार ने 2 रकात नफिल पढ़ी या आपने फौरन सजदे में सर गिरा दिया और अर्ज की कि अल्लाह या अकबर, अल्लाह माता फिरौन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का फिरौन अब मर चुका है। तो आपने उसके मरने पर सजदा शुक्र अदा किया
کہ آج زمین پاک ہو گئی اس دشمن سے جس نے ساری زندگی اسلام کے خلاف گزار دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے آپ کے ساتھ پورا فرما دیا.